اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلبرگ، اکبر چوک کے اطراف میں بارش۔ شہر میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے، جو اس وقت لبرٹی چوک میں موجود ہیں۔ جی مبین، آگاہ کیجیے۔ بالکل یہ صورتحال ہے شہر لاہور میں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات شہر کے بیشتر مقامات پر بارش سامنے آئی، جس میں ماڈل ٹاؤن، کنال روڈ، لبرٹی چوک، گلبرگ، ڈیفنس کے علاقوں میں بارش سامنے آئی۔ ہلکی بوندا باندی تھی، لیکن اس کی وجہ سے موسم میں قدرے خوشگوار احساس نمودار ہوا ہے۔ ابھی بھی درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلیں، درجہ حرارت جو ہے تقریباً 28 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 40 کو ٹچ کرنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے پراپر اس میں ہیٹ ویو محسوس کی جا سکے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ رات کے اوقات میں ہلکی بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ انپریڈکٹڈ بارش سامنے آئی، جس کی وجہ سے شہر لاہور کا موسم قدرے بہتر ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ منگل یا بدھ کے روز بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، کہ شہر لاہور میں منگل یا بدھ کے روز بارش پر بادل برسیں گے۔ اور آج ایک صورتحال اسی طرح سے ہے کہ بارش کے بعد ایکو انڈیکس میں بھی بہتری سامنے آئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آج سارا دن جو ہے سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی تو جاری رہے گی، لیکن دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے دوبارہ سے پیک کرے گا اور ہیٹ ویو محسوس کی جا سکے گی۔ یعنی شہریوں کو چاہیے کہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے گھر سے نکلتے وقت سر کو ڈھانپ کر رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں، اور جو موسم کے مضر اثرات ہیں پریکاشنری میئر استعمال کرتے ہوئے ان سے خاص طور پر محفوظ رہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ملک کے ساتھ اس ظلم کی کیا ضرورت ہے؟ بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے محمد حسن رضا کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی خصوصی شرکت۔ وہ کہتے ہیں کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کی ضرورت کیا ہے؟ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں۔ بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا، اسے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ اجلاس میں مریم نواز نے کہا کہ آٹا اور بجلی کے نرخ لوگوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ چاہتی ہوں کہ ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے۔ سولر پینل فائنینسنگ اسکیم کا دائرہ کار بتدریج بڑھائیں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سولر پینل اسکیم جائزہ لے کر 14 اگست سے لانچ کر دی جائے گی۔ پی آئی ٹی بی کی قراردادی کے بعد کامیاب صارفین کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں 1 لاکھ سے زائد صارفین کو قراردادی کے ذریعے سولر پینل دیے جائیں گے۔ بجلی چوری، 1 سے زائد میٹر خراب یا ٹیمپرڈ میٹر اور ناہندہ صارفین سولر اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ اسکیم، سولر پینل لینے کا اہل کون ہوگا؟ حکومت اہلیت کا طریقہ کار طے کر دیا۔ محکمہ توانائی پنجاب نے فائنل پلان وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سولر پینل دینے سے متعلق اہم اعلان۔ پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ اسکیم کے تحت سولر پینل دینے کا اہل کون ہوگا؟ ذرائع محکمہ توانائی کے مطابق ایک ہی گھر میں 2 میٹر والے صارفین کو سولر پینل نہیں ملیں گے۔ بجلی چوری میں ملوث اور ڈیفالٹر صارفین کو بھی سولر اسکیم سے آؤٹ کر دیا گیا۔ ڈیفیکٹڈ میٹر والے صارفین بھی حکومت کی سولر پینل اسکیم سے آؤٹ ہوں گے۔ یہ شرائط تمام مفت اور قرض پر سولر پینل دینے والوں پر عائد ہوں گی۔ منصوبے کا ترمیم شدہ PC1 منظوری کے لیے P&D بورڈ کو ارسال کر دیا گیا۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن یونٹ کو بھی اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی تاکہ شفافیت اور معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب کا کابینہ میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے۔ کابینہ میں 4 سے 5 افراد کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب حکومت نے 28 پارلیمانی سیکرٹریز بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناراض ارکان کو پارلیمانی سیکرٹریز بنایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں محمد حسن کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کابینہ میں 4 سے 5 افراد کو شامل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب سے 2 افراد کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ رانا اقبال، منشولہ بٹ، سلطان حیدر علی خان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ افراد سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ مریم نواز پارٹی صدر میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد کابینہ میں توسیع کریں گی۔ پنجاب حکومت نے 28 پارلیمانی سیکرٹریز تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ کچھ ناراض اراکین کو پارلیمانی سیکرٹریز بنایا جائے گا۔
जाएगा ताकि पार्टी इख्तलाफात खत्म हो सकें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तलाफात खत्म हो सकें। उन्हें अहम महकमों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर के लफ्जी निश्तर। कहा, क्या मरियम नवाज समझती हैं ये अवाम की हुकूमत है? जल्द महंगाई और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। जानते हैं मजीद मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान और सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब चौधरी जुबैर कसाना ने लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहमद खान ने कहा, हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपके दिलों में अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का खौफ है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आपके दिन गिने जा चुके हैं बिकॉज आप हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम का वोट चोरी हुआ है। ये इनके अंदर का खौफ है। जो अडयाला जेल में कैदी 804 बैठे उसका खौफ है। आज जो बहरान है इस मुल्क में, आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है उसकी जिम्मेदार इस वक्त की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है। चौधरी जुबैर कसाना ने कहा, चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्किद किया। चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से कबल रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन का जो इजलास कंडक्ट किया और उसकी रोशनी में जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस को अपनी रिटायरमेंट से महज 1-1.5 माह कबल वो किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाकर बिठाना चाहते हैं, वो अमल सरासर बदनीयती पर मबनी है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि इस्लामाबाद और लाहौर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जलसे करेंगे। बानी पीटीआई अपनी ज़ात नहीं मुल्क के हवाले से बात करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जमात इस्लामी अवाम को IMF के ग़ुलामों से निजात दिलाएगी। लियाकत बलोच का मंसूरा में इजलास के दौरान कहना था कि जमात इस्लामी अवाम को महंगी बिजली और पेट्रोल के अजाब से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम IPPs के जालिम सरपरस्तों से मुल्क व मिल्लत को निजात दिलाएंगे। मुल्क में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं, अवामी ऑपरेशन दहशतगर्दों का खात्मा करेगा। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम, डॉक्टर फरीद पराचा, नज़ीर अहमद जंजुआ, मज़हर सदीकी, रशीद अहमद, सैयद लतीफ़ुर रहमान शाह, बशारत भट्ट, फरहान शौकत, हिंजरा भी शरीक हुए। सब्जी, फल, ब्रायलर गोश्त, अंडे और दालें सरकारी निरखों पर घर की दहलीज पर दस्तयाब। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की फ्री होम डिलीवरी सर्विस का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए अहम इकदाम, मॉडल बाजारों से अशिया ज़रूरिया की सप्लाई घरों तक शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 5 किलोमीटर के इलाका मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। शहर के 10 मॉडल बाजारों में सर्विसेज शुरू कर दी गई। सूबे के 36 मॉडल बाजार इसमें शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि अच्छा इकदाम है जिससे खवातीन मुस्तफीद होंगी। दायरा कार 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया जाए। खवातीन के लिए बहुत बेनिफिट मिल गया क्योंकि मर्द जो होते हैं वो कामों काजों पे होते हैं, खवातीन बाज नहीं भी आ सकती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो 5 किलोमीटर तक इन्होंने की हुई है, 10 किलोमीटर तक हो जाए तो और भी अच्छा होगा, आवाम के लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। फ़ोन करन नहीं आ सकते बंदे कम्मा कुम्मा ते गए, अच्छा काम है, इनू होर मजबूत करके लोगों वास्ते सहूलत बनाना चाहिए। मैनेजर मॉडल बाजार अहमद भट्ट ने बताया कि फ़ोन कॉल करें और अपना ऑर्डर लिखवाएं। कम से कम ऑर्डर 500 रुपए तक का होना ज़रूरी है। इससे मुताल्लिक मोबाइल ऐप भी एक आध रोज़ तक चल जाएगी। हमारी आज से जो है वो इंशाल्लाह ताला वो एप्लीकेशन जो है वो आवाम के लिए अवेलेबल होगी। विद इन 30 मिनट्स आपको आपकी घर की दलीज के ऊपर आपकी अशिया जो हैं वो आपकी एसेशनल आइटम जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना 500 मिनिमम इसका ऑर्डर होगा जो आप करेंगे और आपको उसको मिल जाएगी चीज़। शहरियों ने अशिया का मयार दर्जा अव्वल और कीमत ऊपर मार्केट से कम रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आम सारिफ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ की तकसीम से यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें मांद पड़ गई। आम सारिफिन ने अशिया की ज़ायद कीमतों की वजह से यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी ही छोड़ दी। रमज़ान के बाद से चीनी दस्तयाब नहीं।
यूटिलिटी स्टोर्स के हालात न बदले। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं, आटे और घी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। आम सारिफ यूटिलिटी स्टोर से दूर हो गया। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को रिलीफ मिल रहा है। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1380 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को 10 किलो आटा 648 रुपए में मिल रहा है। आम सारिफ के लिए चीनी का फी किलो निर्ख 155 रुपए किलो मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए चीनी 109 रुपए फी किलो है। आम मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आम सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए फायदेमंद हैं। देखें ये आटा के ढेर लगे हुए हैं, हमें मिल नहीं रहा। वो कहते हैं जी आपको इतना 1200 या 1300 रुपए का में हम देंगे। ये चीनी के लिए हम आ रहे हैं कि चीनी मिल जाए, हमें चीनी भी नहीं मिल रही। इधर चीज़ें जो है ना महंगी हैं, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। अगर कार्ड है बेनज़ीर ट्रांसपोर्ट का फिर चीज़ें सस्ती हैं। चीनी शार्ट हुई है, 2 महीने हो गए हैं। आवाम आती है दे चले जाती है पूछ के। बाहर से वो जो है ना 150 से ऊपर मिल रही है, कोई 150 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है। यहाँ पे जिसका कोई कार्ड बना हुआ है उसको तो रिलीफ मिल जाता है, आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं है। ज़राए के मुताबिक दालों और चावल पर सब्सिडी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हतमी फैसले के बाद 1 अगस्त से कीमतों में कमी हो सकती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई की सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है ट्रेन आम आदमी के सफर का जरिया है, इससे भी पहुंच से दूर कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कभी पेट्रोल पंप तो कभी बिजली महंगी करने के झटके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। हुकूमत शहरियों को एक के बाद एक बुरी खबर देने लगी। महंगाई के सताए अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। नए किरायों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। खैबर मेल का लाहौर से कराची का नया किराया इकोनॉमी 4250 रुपए होगा। एसी स्टैंडर्ड का किराया 6800 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का इकोनॉमी क्लास का किराया 950 रुपए होगा। एसी स्टैंडर्ड का किराया 1500 रुपए है। लाहौर से पेशावर खैबर मेल की इकोनॉमी क्लास का टिकट 1150 रुपए का हो गया। एसी स्टैंडर्ड का किराया भी 1900 रुपए कर दिया गया। शहरियों का कहना है पहले ही महंगाई के मारे हुए हैं, हर चीज रोजाना की बुनियाद पर महंगी की जा रही है। अब गरीब के लिए सस्ती सवारी का सफर भी मुश्किल हो गया है। ये ज्यादती है अवाम के साथ, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होना चाहिए। आगे अवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिस रही है, और ऊपर से ये 1% जो है इन्होंने बढ़ाया है। 1% तो हुकूमत ने बढ़ाया, लेकिन आगे से जो है ना वो जो लोग किराए बसों वाले और या ट्रेन वाले ये अपनी मनमानी करते हैं। पहले भी लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं सारी महंगी हैं। तो ये आवाम के साथ जाती है। देखिए ये महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 100% है। अब मज़ीद महंगाई आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेलवे का सफ़र ज़रा कंफर्टेबल होता था, आरामदेह होता था, सस्ता होता था, लेकिन ये है कि अब हमारी पहुंच से ये भी बाहर होता जा रहा। अब तो ये होगा कि हम कहीं पे पैदल या कहीं साइकिल पे वगैरह। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे के किराए बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज में ताजर बरादरी ने भी भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस की क़यादत का कहना है कि हुकूमत दिहाड़ीबाजों और ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करे और कारोबारी और तजारती सरगर्मियों को चलने दे। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स, टैक्सेस की भरमार से तंग कारोबारी शोबों ने सर पकड़ लिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर दाद रसी के लिए पहुंच गए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया टॉक करते हुए सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील तारिक ने कहा कि यहाँ एक्सल लोड के कानून के नाम पर टैक्सेस और पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आलमी कानून के नाम पर अरबों रुपए की लूट मार हो रही है। पेट्रोलिंग पुलिस का काम अमन व अमान संभालना है, लेकिन इनको भी चालान बॉक्स थमा दी गई हैं। हमारे ड्राइवर्स कत्ल हो रहे हैं, लेकिन पैसे जमा करना ब्यूरोक्रेसी की अव्वलीन तरजीह है। 25 जुलाई को हमने हड़ताल की कॉल दी है और ये पूरा पंजाब में, पूरा पेशावर में, अभी हम पेशावर से लेके पूरा पंजाब का विजिट करके आए हैं। तमाम लोग मुत्तफिक हैं, लोग तंग हैं
क्योंकि पंजाब बंद हो गया, पेशावर बंद हो गया, इसका मतलब है कि कोयटा भी बंद हो गया, आपका कराची भी बंद हो गया, ना लोडिंग होगी ना अनलोडिंग होगी, ठीक है, ना डिलीवरी होगी ना बुकिंग होगी, तो वो कोई भी सामान हमारे पास नहीं आएगा, जिससे मज़ीद महंगाई होगी, शॉर्टेज होगी, सामान आपका डेली का डेली जो पहुंचने वाला है आपका टाइम पे नहीं पहुंचेगा, आपकी एक्सपोर्ट रुकेगी, आपकी इंपोर्ट रुकेगी, फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन रुकेगी, और उसके बाद जो लेबर है वो बेरोज़गार होगी। हमारे पास जो इस वक्त लाखों लोग हैं डेली वेजेस वाले हैं, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे? हमने 25 तारीख को सख्त तरीन पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद ने कहा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस अहम मसले पर कारोबारी बिरादरी के साथ खड़ा है। मुल्क की माशी हालात पहले ही बहुत खराब हैं, हुकूमत फौरी इस मसले का हल निकाले। जबकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस वकार अली ने कहा कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट को मसाइल पेश आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। खुदारा ब्यूरोक्रेसी और दिहाड़ी बाजों को निकेल डालें। 25 जुलाई के एहतजाज में हम ताजिर भरपूर शिरकत करेंगे। किस कदर जुल्म है ये, और मैं समझता हूँ कि जी हुकूमत ने अगर आज अकल के नाहो ना लिए, उसके ऊपर कोई जामे इकदामात ना उठाए, तो अवाम को और ताजर बरादरी को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। वो फिर इस जुल्म के सामने जब खड़े होंगे तो कोई उनको रोक नहीं सकेगा। जो भी चीज़ें आप देखें, ये ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करनी है, ज़ाहिर बात है इनको मसले मसाइल आएंगे तो इन्होंने भी फिर रेट बढ़ाने हैं, रेट बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उससे बड़ा सबसे बड़ा जो एक्सल वेट का इन्होंने कहा है कि इसको ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना ये बहुत सारे जो दिहाड़ियाँ लग रही हैं, जो दिहाड़ीबान बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी, दिहाड़ीबाज, ये इनको खुदा के लिए नकेल डालें। इस मौके पर सदर ट्रेडर्स अलायंस इजाज मुश्ताक भट्ट समेत फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों के ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब की बाइक स्कीम तलबा को खुशी न दे सकी। भारी भरकम डाउन पेमेंट बाइक खरीदारी में बड़ी रुकावट। तलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करना होगी, हुकूमत सिर्फ सूद अदा करेगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं बाइक की डाउन पेमेंट में मज़ीद कमी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। हुकूमत पंजाब की बाइक स्कीम के हकाइक ने तलबा की खुशी मांद कर दी। डाउन पेमेंट ने तलबा को परेशान करके रख दिया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 जबकि डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए। भारी भरकम डाउन पेमेंट के बायस तलबा का बाइक लेने का रुझान कम होने लगा। तलबा का कहना है 1,70,000 रुपए एडवांस और 4,375 रुपए की माहाना किस्त की रकम कहां से लाएं। इंश्योरेंस की रकम 5% से कम करके 3% हो गई है। डाउन पेमेंट सिफर करके माहाना इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की जाए। इस मसले पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि बाइक स्कीम के हवाले से हकाइक और तरीक़ाकार जरा मुख्तलिफ है। शुरू में हुकूमत की जानिब से 2 ऐलानात किए गए थे। स्पेशल बाइक्स की कीमत के लिए हुकूमत ने 1,50,000 रुपए तक फाइनेंसिंग करना थी। ई बाइक्स की कीमत के लिए हुकूमत ने 2,50,000 रुपए तक की फाइनेंसिंग करना थी। तय हुआ कि बाइक्स के इकसात बगैर सूद के तालिब इल्म खुद अदा करेंगे। तलबा की जानिब से डाउन पेमेंट की ज्यादा कीमत की शिकायत पर वजीर आला मरियम नवाज ने कीमत कम करने की हिदायत की है, जिसकी समरी सूबाई काबीना को भेजी जा चुकी है। समरी मंजूरी के बाद पेट्रोल बाइक्स और ई बाइक्स की कम से कम डाउन पेमेंट की अदायगी का तरीका कार वज़ा करेंगे। देखिए, जब ये बाइक स्कीम अनाउंस हुई थी तो उस टाइम पे बिल्कुल अनाउंसमेंट यही थी कि जो बाइक्स हैं पेट्रोल बाइक्स के लिए 1.5 लाख की फाइनेंसिंग हुकूमत फराहम कर रही है और जो ई बाइक्स है उसके लिए 2.5 लाख की फाइनेंसिंग हुकूमत फराहम कर रही है। तो ई बाइक्स थी नहीं, ये तो यही था कि इसकी किस्तें बच्चे देंगे सूद के बगैर। उसकी 30% होती है डाउन पेमेंट। जो 1.5 लाख की बाइक है उसकी 30% पेमेंट बनती है 45,000 रुपया जी। तो जब ये फिगर सामने आई तो उसमें सीएम साहिबा ने कहा कि जी ये तो फिगर बहुत बड़ी है, बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो इसमें से भी जो 20,000 रुपए है वो हुकूमत पंजाब इसको बेयर करेगी। अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर किसी ने 275 की बाइक की है तो उसमें फिर थोड़ा सा यही मसला है ना जी कि वो उसके ना 125,000 तो वही ज्यादा हो गया, जहाँ की उसकी फाइनेंसिंग की 1.5 लाख की फाइनेंसिंग 275 की बाइक हो गई। तो उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज भी उनके बच्चों के पास चॉइस मौजूद है कि अगर वो चाहें तो वो अपनी चॉइस को दोबारा चेंज कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों बाइक्स तकसीम करने की एक तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कुछ तलबा ने ई बाइक्स की डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा होने की शिकायत की थी। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजिर मैदान में आ गए। उर्दू बाजार के ताजिर कहते हैं अगर हुकूमत ने 10 दिन में फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल होगी। सेल टैक्स के नफाज से करप्शन का बाजार गर्म हो गया। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में।
स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगने के खिलाफ उर्दू बाजार के ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब में अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान खालिद परवेज और फयाज नियाज ने टैक्स को जालिमाना करार दिया। कहते हैं ये सेल टैक्स नहीं देंगे, इससे करप्शन का बाजार गर्म होगा। 10 दिन में हुकूमत फैसला वापस ले, वरना मुल्क भर में एहतजाज होगा। स्टेशनरी आइटम्स 25% महंगी हो जाएंगी, ये बोझ गरीब आदमी के बच्चे पर पड़ेगा। मैं हुकूमत को भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो फिर 11वें दिन इस पर एहतजाज भी होगा और इस पर हड़ताल भी होगी और पूरा बाजार भी बंद होगा और बाजार के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी बंद होगा। ये ताजर इसलिए बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रोजगार नहीं है, ऑलरेडी इनके पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी सेल्स नहीं है हमारे पास। अब ये जो 14% टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसका क्या मानी है? इसका मानी ये है कि आप लूट रहे हैं हमें। ये कोई टैक्स स्टेट है कि पाकिस्तान है? ये सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर कहते हैं, हुकूमत ने तालीम सब के लिए का नारा लगाया और टैक्स लगाकर गरीब के बच्चे से कलम दवात छीन ली। ताजिरों ने कहा, ऐसे टैक्स से तालीम हर बच्चे तक का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इतना टैक्स लगाने से हुकूमत कितना खजाना भर लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। LDA का बजट में मखसूस मंसूबे की मद के बजाय ओपन फंड्स रखने का फैसला। माली साल 2024-25 में सवाबदीदी फंड्स के तौर पर कसीर रकम रखने का इम्कान। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शहर की बढ़ती हुई आबादी और फ़ज़ाई आलूदगी ने आवाम का जीना महाल कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और लिवेबल एनवायरनमेंट की फराहमी का प्लान। लाहौर को पहली बार सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने LDA को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के लिए भी 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत फुटपाथ और ग्रीनरी का काम किया जाएगा। LDA का बजट में मखसूस मनसूबे की मद के बजाय ओपन फंड्स रखने का फैसला। माली साल 2024-25 में सवाबदीदी फंड्स के तौर पर कसीर रकम रखे जाने का इम्कान है। रवा माली साल में LDA ने जाती वसाइल से कोई फ्लाईओवर और अंडरपास तजवीज़ नहीं किया। ताहम मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। माली साल के दौरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर 5 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के फंड्स मखसूस स्कीम पर लगाने के बजाय जरूरत की बुनियाद पर इस्तेमाल होंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। MD वासा गुफरान अहमद कहते हैं, वासा लाहौर ने खुद को माली तौर पर मुस्तकिम इदारा बनाया है। वासा ने वाटर सप्लाई और सीवरेज की मद में गुज़िश्ता सालों में की निस्बत रिकॉर्ड 60% ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया है। DG LDA ताहिर फारूक ने MD वासा गुफरान अहमद और उनकी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। DG LDA ने वासा की जारी मानसून सीज़न की तैयारियों का जायज़ा लिया। MD वासा ने बताया कि मानसून बारिशों से निपटने के लिए वासा मुकम्मल तैयार है। छोटे सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि लाहौर में इन्वेस्टर्स के लिए 101 ग्रुप और डायो प्रोपेटिक के ज़ेरे एहतमाम तकरीब हुई। फाउंडर डायो प्रोपेटिक अवैस बरलास कहते हैं, 101 क्यूब की शक्ल में छोटे सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है। लाहौर में सरमायाकारी को फरोग देने का आज़म 101 ग्रुप फिर आ गए। 101 ग्रुप और डॉ प्रॉपर्टी के ज़रिए तमाम क्यूब 101 में तकरीब का इनेकाद। फाउंडर डॉ प्रॉपर्टी अवैस बरलास, हेड ऑफ मार्केटिंग सारा जाहिद और हेड ऑफ सेल्स हादिया रिजवी और सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाउंडर ऑफ डॉ प्रॉपर्टी अवैस बरलास ने अपने खिताब में कहा कि 101 क्यूब की शक्ल में छोटे सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है ताकि हर पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सके। कि यहाँ पे अगर लोग आके कुछ हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इफ दे वांट टू गेट एनी डिटेल्स अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दे कैन गो टू आवर वेबसाइट और इसके ऊपर इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर कितना काम हो चुका हुआ है, यहाँ पे रेंटल कितना आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल गेन्स कितने हैं। वी ट्राइंग टू डू इट एज ट्रांसपेरेंटली एज पॉसिबल। कोशिश ये की है कि भी हर बंदे के लिए, हर एवरेज जो के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो आराम से सुकून से बैठ के अपनी रियल एस्टेट की जर्नी को शुरू भी कर सकते हैं और साथ में उसको प्रोग्रेस देख भी सकते हैं।
तकरीब में हेड ऑफ सेल्स हादिया रिजवी ने कहा कि टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में ला रहे हैं, जिससे छोटे इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा हासिल होगा। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हम वो पहले लोग हैं, पहले डेवलपर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में हम लेकर आए हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट की मत हो, बल्कि वो सारे लोग जो छोटी अमाउंट से, कैपिटल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करना, उन सब के लिए ये चीज़ अवेलेबल हो। हेड ऑफ मार्केटिंग सारा जाहिद ने खिताब में कहा कि 101 ग्रुप लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पर सरमायाकारी के बेहतरीन मौके फराहम करने जा रहा है। हम बहुत एक्साइटेड थे इस इवेंट को करने के लिए, क्योंकि जो हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं डाउ प्रॉपटेक, वो एक बहुत ही इनोवेटिव और नई चीज़ लेके आ रहे हैं रियल एस्टेट में, जिसमें हम एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर किसी की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें उनको मंथली रेंटल रिटर्न्स भी मिलते हैं, ईयरली कैपिटल गेन्स भी मिलते हैं, और आज इस ओपन हाउस में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। तकरीब के मुंतज़मीन ने मज़ीद कहा कि 101 ग्रुप मुस्तकबिल में भी डॉ प्रॉपर्टी के ताउन से पाकिस्तान के सरमायाकारों को ऐसे मौके फराहम करता रहेगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। ज्यादा बारिशों के बायस रवां साल डेंगू के फैलाव में शिद्दत आने का खदशा पैदा हो गया है। मानसून सीजन के दौरान ही डेंगू मरीजों के अस्पतालों में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में 20,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर की इस रिपोर्ट में। बारिशों का सीजन खत्म होने के साथ ही डेंगू का फैलाव तो अब जैसे मामूल की बात है, लेकिन इस बार सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। रवां साल बहुत शिद्दत के साथ इस बात का खदशा महसूस किया जा रहा है कि इस बार गुज़श्ता सालों की निस्बत डेंगू के फैलाव में ज्यादा शिद्दत पैदा हो सकती है। इसकी वजह रवां मानसून के दौरान मतवक्को तौर पर ज्यादा बारिशों का बरसना बताई जा रही है। मिड अगस्त के बाद टेम्परेचर इस रेंज में आ जाते हैं, जिससे और नमी भी काफ़ी होती है, और जगह जो है हमेशा गीली उनको मिलती है और पानी फ्रेश मिलता है बारिशों की वजह, तो उसकी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से करती है, और जो उसका इफेक्ट है एंड ऑफ अगस्त और सितंबर में मच्छर की ग्रोथ और तादाद इतनी हो जाती है कि बाकायदा जो है पेशेंट हॉस्पिटलों में आने शुरू हो जाते हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर लाहौर में कमोबेश डेंगू के 20,000 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनके बायस डेंगू लार्वे की अफसाइश में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा सामने आया है। सूरत हाल के पेश नज़र ही शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू मरीजों के लिए 1044 बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। तो हमने ऑलरेडी अपनी हॉट स्पॉट्स जो हैं उनको अपडेट कर लिया हुआ है। हमारी जो टीम्स है वो सर्वेलेंस भी कर रही हैं प्रॉपर्ली। उसमें लावा डिटेक्शन पे हमारा मैक्सिमम फोकस है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पेशेंट्स तो कम होते हैं, लेकिन इस वक्त जो काम होता है वो आगे का पैटर्न सेट करता है कि जी आगे कितने तादाद में पेशेंट्स आएंगे। तो जितनी बेहतर सर्वेलेंस होगी उतना ही कम होंगे जो इंसिडेंट्स हैं डेंगू के। देखा जाए तो अगर इस मरतबा डेंगू के फैलाव में इजाफे का इम्कान है, तो ऐसे में शहरियों की जिम्मेदारी में भी इजाफा हो जाता है। डेंगू का हर साल पर फैलाना अब मामूल बन चुका है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि इसके बावजूद हम बेहैसियत मजमूई उन तदाबीर पर अमल करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते जिन पर अमल करके हम बड़ी हद तक इस सफरियत से बच सकते हैं। हालांकि इस हवाले से हम भी अक्सर अपने नाजरीन को आगाह करते रहते हैं, बाकी इन पर अमल करना या ना करना वो हर किसी के अपने इख्तियार में होता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हेल्थ कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तहलील का तनाज़ा। डॉक्टर्स तंजीमें बोर्ड की तहलील के मामले पर एक हो गई। डॉक्टर्स रहनुमाओं ने 24 जुलाई को महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर धरने में शिरकत का ऐलान किया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिलीज फिजिशियंस के अहदेदारों का इजलास हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तहलील की मजम्मत। डॉक्टर्स ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन पर शब खून मारा। 24 जुलाई को महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर धरना हर सूरत होगा। PMA लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ नजामी ने कहा, हेल्थ केयर कमीशन सजा पहले और जुर्म बाद में साबित करता है। जो एक मुरव्वजा यहाँ पे हमारे मुल्क में और दुनिया में गालिबन ऐसा ही होता होगा कि वो जुर्माने आयद करो, सज़ा पहले दे दो, जुर्म भले उसका भी साबित हो या ना हो। इसी रविश के ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने काम किया और इस नहज पे हम पहुँचे कि हम एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर सड़कों के ऊपर आए, एक धरना दें इस इदारे के ख़िलाफ़ कि जिसने ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि सेहत की सहूलियात को भी मफलूज करके रख दिया। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी कहते हैं, इंसुलिन 700 की मिल रही थी, वो महकमा सेहत ने 1100 की खरीद ली। हम हर सूरत 24 जुलाई के धरने की हिमायत करते हैं। डॉक्टर रहनुमाओं ने मजीद कहा कि 24 जुलाई के धरने पर भी मुतालबात मंजूर ना हुए तो वहीं पर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा।
जनरल अस्पताल लाहौर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। खवातीन के ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर की तशखीस के लिए टेस्टों का आगाज कर दिया गया। केसेस बारे अब मरीजों को एडवांस मालूमात मिल जाया करेंगी। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। खवातीन के ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती शरह ने बहुत से खानदानों को मुतासिर किया है। कैंसर का ये मर्ज मौरूसी तौर पर भी बढ़ रहा है। घर की एक खातून इसमें मुब्तला हो जाए तो दूसरी खवातीन का BRCA1 और 2 टेस्ट करके बर वक्त इस मूजी मर्ज से बचाया जा सकता है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि खवातीन के कैंसर का आगाही मजमून स्कूल निसाब में शामिल होना चाहिए। कैंसर ब्रेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ चुका है और इसमें फ़ीमेल्स को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उनको एक तो रूटीन मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और ब्रेस्ट के लिए वो ख़ुद भी अपना अगर एग्ज़ामिनेशन कर लें तो वो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ें तो खैर वो सबसे पहले डिटेक्ट वो फीमेल खुद ही कर सकती है। PGMI और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर गजाला रूबी के मुताबिक BRCA1 और 2 टेस्ट खवातीन के ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर की तशखीस में मदद देंगे। ये टेस्ट जेनेटिक इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सिंबल या सिम्टोमेटिक होने से पहले पेशेंट को पता चल जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ to cure the patient at a very early. प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में ये टेस्ट 1 लाख रुपए से जायद में होता है। जनरल अस्पताल में गरीब मरीज के लिए ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़।